Welcome to Sharad V. More English School on a lecture. Good afternoon, student. Yesterday I have started the lesson number 4, Nutrition in the Living Organism. In this lesson, the first life process is nutrition, and the nutrition is divided into the different classes. For example, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So yesterday we have studied about the autotrophic nutrition. The plants or green plants come under the category autotrophic nutrition. After that we have studied about the transport system in the plants, that is transport of the mineral and water and transport of the food material. The transport of the food material takes place through the phloem tissues, and the transport of the water and mineral takes place through the conducting tissues called xylem. After that, we have studied about the biological fixation of nitrogen. Under that, we have studied how the atmospheric nitrogen is fixes into the nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, which is useful for the plants. After that, we have studied about the symbiotic nutrition. In the symbiotic nutrition, the host and guest both get benefited from each other. दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं. एंड सच ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ द लाइकेन. लाइकेन इसका क्या है, लाइकेन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट, इसका एक एग्जाम्पल है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Now those plants which cannot synthesize their own foods by their own, or they dependents on other plants for their food, called the heterotrophic plants. ऐसे प्लांट जो डिपेंड्स होते हैं ऑन अदर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट. एज ऑल animals are also heterotrophic. So similarly, the some plants they are also heterotrophic. Now see the example of Loranthus is given here. Now this Loranthus grow on the branches of the trees. ब्रांचेस जो होती है ट्रीज के, उसके ऊपर ये क्या होता है, ग्रो हो जाता है. ओके, द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल. इनके अंदर क्लोरोफिल absent रहता है, so that's why they cannot form the glucose used by photosynthesis process. तो photosynthesis process से ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. हाउ डू द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट लिव और लाइव. तो जो हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं. फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड. उनको फूड कहाँ से मिलता है. एज यू नो दैट द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, दे परफॉर्म द process of photosynthesis in their body, especially in leaves, and the glucose is synthesized in it, and that glucose utilized by the plant for their growth and development, and extra glucose is stored in their different parts of the body. But those plants which are heterotrophic, means that cannot perform the photosynthesis, how do they लिव, कैसे वो रहते हैं, एंड हाउ वेयर डू दे गेट द फूड, और उनको फूड कहाँ से मिलता है. तो हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफ लेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन द बिग ट्री. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट सीन, बिकॉज this we generally see in the village. What is its name? So what is that plant's name that have the leafless and wireless plant that grow on the big trees, जो बड़े trees पे grow होता है. तो what is the name of that plant? Loranthus. उसका क्या नाम है, Loranthus. The plant that grow on the body of other plant to obtain the food are called parasitic plant.
those plant which are directly depend on the other plant or other living things for their food, also called the parasitic plant. For example, Lorenthus and Cuscuta, Cuscuta को हम बोलते हैं अमरबेल. Due to the absence of chlorophyll, the Cuscuta is completely dependent on the host plant. क्लोरोफिल के एब्सेंस में जो कस्कुटा होता है वो टोटली होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, हेंस इट इज सेड टू बी कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट. इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरासाइटिक प्लांट. यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस लोरेंथस दैट ग्रोज ऑन द ट्री. विच पार्ट ऑफ द लोरेंथस प्लांट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस. कौन सा पार्ट जो है लोरेंथस का वो फोटोसिंथेसिस कैरीज आउट करता है. Second question, from where do they obtain the mineral and water? We know that the plants need the four things for the photosynthesis. First one is the carbon dioxide. Second thing in the water and mineral, and sunlight and the chlorophyll. Now Lorenthus, as you know that the Lorenthus grow on the other trees, then the leaves of that Lorenthus have the chlorophyll, but from where does it obtain the mineral and water? So the water and mineral which are absorbed by the tree on which it present, from that branches it take the mineral and water and then it perform the photosynthesis. Why is the Lorenthus known as the partial parasitic plant? Why it is called as the partial parasitic plant? Because the Lorenthus perform the photosynthesis. It only depends on the tree on which it grow for the mineral and water. सिर्फ वो मिनरल और वाटर के लिए ही उसके ऊपर डिपेंड रहता है. वो सिर्फ मिनरल एंड वाटर ही सिर्फ उस होस्ट प्लांट से लेता है एंड आफ्टर टेकिंग दैट इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. उसके बाद में वो फोटोसिंथेसिस ओन से प्रिपेयर करता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट. इसलिए पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं हम लोग. इंसेक्टिओरस प्लांट. Next one is the insectivorous plant. Now see the insectivorous plant, ड्रोसेरा. क्या नाम है इसका, ड्रोसेरा. और एक नाम है वीनस फ्लाईट्रैप. क्या नाम है, वीनस फ्लाईट्रैप. तो these two plants are the insectivorous plant. We have seen how some plants feed upon the insect to obtain the nutrient. We have seen how some plants feed upon insect to obtain the nutrient. These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compound. तो ये जो insectivorous plant होते हैं वो जनरली सॉइल और वाटर डेफिशिएंट, जो सॉइल है और या तो वाटर डेफिशिएंट वाले रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी रहती है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड. तो दिस insectivorous plant generally grow in the soil or water deficient in the nitrogen compound. ये ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे सॉइल में या तो वाटर में नाइट्रोजन कंपाउंड की लैकिंग होती है, कमी होती है. द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मनी हैज़ द फ्लावर लाइक अपीयरेंस. जो ये ड्रोसेरा प्लांट है इसका जो अपीयरेंस होता है फ्लावर्स लाइक होता है, फ्लावर की तरह दिखाई देता है, फूल की तरह दिखाई देता है. बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट फ्लावर, वो फ्लावर नहीं होता है. इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, और ये ज़मीन के नज़दीक ग्रो होता है. इट लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर विथ हेयर्स एट द मार्जिन. और जो इसके लीफ होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, पिंक कलर और या तो रेड कलर के होते हैं. And that leaves have the hair-like structure at the margin. The droplet of the sticky substances formed at the tip of the hair attract the insect. और जो sticky material secrete होता है उस hair के टिप से, उस टिप से जो sticky material secrete होता है, that sticky material attract the insect, वो insect को attract करता है. The scientist Jonas Berman identify this plant in
श्रीलंका इन 1737, जो जॉनेस बर्मन नेम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस प्लांट को श्रीलंका में 1737 में आइडेंटिफाई किया, पहचाना। हैंस द प्लांट नेम्ड आफ्टर हिम, इसलिए उस प्लांट का नाम ही उनके डेथ के बाद उनके नाम पे रख दिया गया। ओके, जो उसके सेकेंड वर्ड जो उससे अटैच है, नेम ऑफ द ड्रोसेरा बर्मनी। ओके, तो जो बर्मनी वर्ड है वो साइंटिस्ट के नेम से जुड़ा हुआ है। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डज द पिक्चर प्लांट फीड ऑन द इंसेक्ट इवन दो इट प्रोड्यूस द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्यों पिक्चर प्लांट जो है इंसेक्ट को फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करते, इवन दो इट कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, जबकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? नाउ सेकेंड category of the plant, saprophytic plant. Next category is saprophytic plant. saprophytic plant है। अब देखिए saprophytic, before that you have learned insectivorous, before that you have studied about the heterotrophic। तो heterotrophic में क्या होता है, वो प्लांट दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है या किसी दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो देयर आर सम प्लांट विच ग्रो ऑन द डिकेइंग मटेरियल, नॉन लिविंग थिंग्स। किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। सच प्लांट आर कॉल्ड एज द सेप्रोफाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट को ही क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जो डिकेइंग मटेरियल है, जो डिके होने वाले मटेरियल है, उन चीज़ों के ऊपर ये प्लांट डिपेंड होते हैं। लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं होते। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन द कल्टीवेशन और ग्रोइंग ऑफ द मशरूम। मशरूम का ग्रोइंग देखे होंगे आपने। मशरूम को ग्रो करने के लिए जो राइस स्ट्रॉ होता है, राइस स्ट्रॉ जो जिसको पुआल बोलते हैं या पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो पैरा, ये जो पुआल होता है उसको राउंड करते हैं, उसको रोल करते हैं। रोल करने के बाद जो उसमें फंगस मशरूम है, उस मशरूम की सीड्स को डाल देते हैं। उसके बाद में उसमें क्या होता है, मॉइस्चर और ये जो है हीट प्रॉपर मिलने से उसमें से वो मशरूम ग्रो होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट। नाउ सी द पिक्चर 4.8, ए सेप्रोफाइटिक प्लांट ग्रोन ऑन द लॉग ऑफ द वुड। जो वुड का लॉग है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये उगा हुआ है। प्लांट विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो दूसरे डेड और डिकेइंग, डेड मतलब ऑलरेडी डेड है और डिकेइंग मतलब वो डिके हो रहे, सड़ रहे हैं, ऐसे प्लांट के बॉडीज पे या ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक प्लांट। वेरियस टाइप्स ऑफ द फंगी लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइट्स। जो अलग अलग टाइप के फंगी हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम है, ईस्ट है, ये सब के सब क्या है? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं। फंगी secretes the digestive enzyme on the dead remains to digest or break down the carbon compound they contain। जो फंगी है यह डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं डेड रिमेन्स पे, टू डाइजेस्ट देम और टू ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। जो उसके अंदर कार्बन कंपाउंड होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स वो क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट। और जब उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। ऑलवेज रिमेंबर, क्या हमेशा याद रखना है आपको, फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द सम फंगी कॉज
diseases or illness, while some fungi have the medicinal properties. फूड जो है वो सम फंगी से स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, एंड दैट सम टाइम कॉजेज द डिजीज और इलनेस, एंड सम फंगी हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है ये इस फंगी से फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फंगी पेनिसिलियम. पेनिसिलियम नाम की ये फंगी से पेनिसिलिन जो नाम का एंटीबायोटिक फॉर्म हुआ है. मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ द आयरन एंड विटामिन. ये जो मशरूम है वो आयरन और विटामिन का रिच सोर्स होता है. एंड यू माइट हैव ईटन द वेजिटेबल्स ऑफ द मशरूम. मशरूम का आपने कभी ना कभी वेजिटेबल भी खाया होगा. रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड इफेक्ट ऑफ देयर डिफिशियंसी ऑन द प्लांट. नाउ रोल ऑफ न्यूट्रिएंट, वी हैव studied about the two types of the nutrient that are necessary for the plant's growth. The nutrient which required in the more quantity called the macronutrient, and those which are required in very less quantity called the micronutrient. Now the nitrogen is the macronutrient. The function, the important compound of the protein, chlorophyll and cytoplasm. ये जो है important component होता है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, as well as cytoplasm. Now if we effect of deficiency, retarded stunted growth, yellowing of the leaves. So if the nitrogen is less in quantity in that plant, so the growth of that plant gets stunted or retarded and the leaf become yellow. तो क्या हो जाती हैं, लीफ जो होती हैं वो येलो पड़ जाती है. सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट इज फॉस्फोरस. इट्स फंक्शन इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. तो ये जो फॉस्फोरस है वो क्या करती है, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, इफ देयर इज लैक ऑफ और लैकिंग ऑफ द फॉस्फोरस, तो इट कॉज द अर्ली लीफ फॉल. तो उसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो है जल्दी गिर जाते हैं, उसके टाइम पीरियड के पहले ही गिर जाते हैं. तो अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, देर से उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, एंड स्लो ग्रोथ ऑफ द रूट, और जो उस प्लांट का जो रूट होता है उसका ग्रोथ स्लो हो जाता है, मीन्स ग्रोथ रिटार्डेड. नाउ नेक्स्ट nutrient potassium. It is necessary for the metabolic activities because it is the mineral. potassium क्या है, mineral है, तो this is necessary for the metabolic activities. Effect of deficiency, अगर इसमें क्या है phosphorus कम होगा तो how it will affect the plant. The stem will be become weak. जो स्टेम होंगे वो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे. विल्टिंग ऑफ लीफ, विल्टिंग का मतलब क्या है, लीफ जो है फॉल होना, येलो होकर क्या हो जाना, फॉल ऑफ होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग. तो इफ़ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ द पोटेशियम, देन द स्टेम बिकम वीक and wilting of the leaf and failure to produce the carbohydrate. And when there is a wilting, then there is a lack of the chlorophyll in it, and hence in lack of the chlorophyll the carbohydrate formation will be less. Magnesium, production of chlorophyll. Magnesium, its function is production of chlorophyll, and you know that how the chlorophyll important to the plant. In absence of the chlorophyll the photosynthesis cannot be performed. Now the deficiency, the growth get retarded, येलोविंग ऑफ द लीफ, और लीफ भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, पीली पड़ जाती है पत्तियाँ. आयरन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल. जो आयरन है इट आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल. नाउ द डिफिशियंसी ऑफ द आयरन,
ब्रिंग्स अबाउट द येलोविंग ऑफ द लीफ, लीफ को क्या कर जाता है इसके absence में येलो हो जाता है, क्या हो जाता है येलो, पीले पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, मैंगनीज, प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्लांट हार्मोन, जो मैंगनीज है वो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में यूजफुल होते हैं। एंड इफ द अमाउंट ऑफ द मैंगनीज इज लेस देन द ग्रोथ retarded and the leaves डेवलप द स्पॉट ऑन इट, और उस लीफ के ऊपर क्या हो जाते हैं स्पॉट डेवलप हो जाते हैं छोटे छोटे। जिंक, ना प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स, जो जिंक होता है वो हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है और उनके इंटरमीडिएट के लिए, और जो हार्मोन के मिडल जो प्रोडक्ट होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए भी यूजफुल होता है। रिटार्डेड ग्रोथ, येलोविंग ऑफ द लीफ, अगर ये कम होगा जिंक तो क्या होगा ग्रोथ विल रिटार्डेड, उसका ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा एंड लीफ विल बिकम येलो। ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड यू एंड डायग्नोज द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इफ एनी, क्या करना है आपको अपने अराउंड जो प्लांट है उस प्लांट को ऑब्जर्व करना है एंड डायग्नोज द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है उसको भी क्या करना है डायग्नोज करना है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब हमने क्या पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्लांट, नाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ओके दिस वी विल सी हियर। दिस कॉन्सेप्ट रेफर टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट, mode of ingesting food and its uses in the body. Nutrient necessary for the various activities of the body are obtained from the food, because food is the fuel for our body. They are supplied to the various parts of the body through the blood, और ये जो है अपने बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद द ब्लड एज इट इज़, जो फूड होता है एज इट इज़ उस ब्लड में मिक्स होता नहीं है। इट नीड टू कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन इजीली मिक्स इन द ब्लड, तो वो फूड जो है उसको जो है उस ब्लड में मिक्स होने के वाले सॉल्युबल फॉर्म में ये कन्वर्ट होना चाहिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन, जो एनिमल में न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व करता है इंजेशन टू इजेशन। Ingestion means taking the food inside the body, and egestion means that giving out of the waste material from the body. बॉडी से वेस्ट मटेरियल को सिक्रेट करने को क्या बोलते हैं हम लोग इजेशन, और बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंजेशन। नाउ द कॉमन 5 स्टेप्स विच आर part of the nutrition are ingestion. Ingestion means taking the food into the body. Next one is the digestion, conversion of food into the simple soluble form. And the third one is the absorption. In absorption, the transfer of the soluble food टू द ब्लड, जो इसका जो सॉल्युबल फूड होता है वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। एसिमिलेशन, इन एसिमिलेशन द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, जो यूटिलाइजेशन है एब्जॉर्ब फूड का सेल्स और टिश्यू में उसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, उसके ग्रोथ के लिए होता है एंड उसके रिपेयर के लिए होता है। इजेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इंजेशन में इजेशन मीन्स व्हाट, जो वेस्ट फॉर्म हुआ वो वेस्ट या वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिजेक्ट करना, निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं इजेशन। Observe the animal around you and complete the following table.
अपने अराउंड में जो एनिमल्स है उस एनिमल को क्या करना, ऑब्जर्व करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेम ऑफ एनिमल काउ, द टाइप नेम ऑफ द फूड, तो जो फूड है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ इंजेशन, इंजेशन का मेथड क्या है। फ्रॉग, टाइप ऑफ द नेम ऑफ द फूड, तो उसका फ्रूट का क्या होता है, फ्रॉग का फूड इंसेक्ट होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट। और मेथड ऑफ इंजेशन तो क्या होता है वो, इट कैच द प्रे एंड इनगल्फ देम, और उसके बाद उनको क्या करता है, निगल लेता है। 240 तक है ना, 2 से 240। और जो काऊ है, नेम ऑफ द फूड, यू नो दैट व्हाट इज द फूड ऑफ द काऊ, द ग्रीन ग्रासेस एंड द स्ट्रॉ, जो राइस स्ट्रॉ होता है या व्हीट स्ट्रॉ होता है उसको कट कर देते, जिसको हम क्या बोलते हैं, हस्क, भूसा। और वाटर, ये जो है उसका क्या होता है, फूड। एंड मेथड ऑफ इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन का मेथड क्या है, इज दैट च्यूड, उसको क्या हो जाता है, च्यू किया जाता है, चबा के उसको वो खाता है। और उसके बाद में रूमिनेटिंग करते हैं वो एनिमल्स, माउथ में से निकाल के उसको फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, चबाते हैं, उसको हम बोलते हैं रूमिनेट करना। टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में क्या है न्यूट्रिशन के टाइप। फर्स्ट वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ओके वो हम लोग देखेंगे। नाउ सी द अमीबा, अमीबा दिख रहा है आपको, द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा, द फूड पार्टिकल, अमीबा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, अमीबा उस फूड पार्टिकल्स ले रहा है। फूड पार्टिकल्स नाउ टेकन इनसाइड, okay, by surrounding that food particles and finally it enter into the body of the amoeba. How does ingestion occur in the unicellular animal like amoeba? जो अमीबा है, अमीबा में ऐसा माउथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें कैसा फूड का इंजेशन होता है। तो दिस इज शोन इन द फिगर 4.9, ये जो इंजेशन है ये 4.9 में क्या किया, शो किया है। The amoeba does not have the organ like hand and mouth. अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, उसके अंदर जो हैंड और माउथ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ ए यूनिसेलुलर एनिमल, इट कैन टेक इन द फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिक सेलुलर बॉडी। तो ये क्या करता है, फूड को अपने किसी भी सरफेस पे बॉडी के लेता है ये। इट कैन टेक अ फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी, तो जो उसका बॉडी का किसी भी सरफेस से वो फूड को अंदर लेता है। तो फॉर दैट इट सराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इनटू द सेल, तो इसके लिए वो क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को ऑल साइड से कवर करता है, पहले सराउंड करता है, and then it take into the body. After that it digest the food with the help of different enzymes, और उसके बाद में डिफरेंट एंजाइम्स है, उस एंजाइम से वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव फर्दर विद द हेल्प ऑफ द सुडोपोडिया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो अमीबा स्यूडोपोडिया के थ्रू उसको बॉडी से बाहर कर देता है। इन यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एट्सेट्रा, ऑल द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन अकर विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। ये जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऑल आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and all step of nutrition occur within their unicellular body only. Insect have the mouth part for ingestion of the food. जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो है फूड के इंजेशन के लिए माउथ का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रॉसहॉपर विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट। जो इंसेक्ट होते हैं कॉकरोच और जो ग्रॉसहॉपर होते हैं उनका जो
जो निबल होता है वो जॉ लाइक माउथ जैसा पार्ट होता है। बटरफ्लाइज सक फूड विद द ट्यूब लाइक प्रोबोसिस, और जो बटरफ्लाइज होते हैं उसमें जो है फूड को सक करने के लिए, चूसने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। Mosquitoes and bedbugs use the needle-like mouth part to pierce and tube-like mouth part to suck the blood or other fluid। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर, और बेडबग्स जो होते हैं, खटमल, इनके जो माउथ जो होते हैं निडल की तरह पॉइंटेड होते हैं, सो दैट दे कैन पियर्स द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल, जिससे वो क्या कर सके, दूसरे एनिमल के बॉडी में उसको प्रिक कर सके, चुभा सके। एंड ट्यूब लाइक माउथ पार्ट, और जो ट्यूब की तरह उनका माउथ का पार्ट है, दैट हेल्प्स इन द सकिंग ऑफ द ब्लड और अदर फ्लूइड, और अदर फ्लूइड को वो क्या करते हैं, सक करने में हेल्पफुल होता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। इन एनिमल को फूड टाइप के अकॉर्डिंग कैसे आप क्लासीफाई करोगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द फूड that animal eat, for example if that animal completely dependent on the plant only, it do not eat the flesh, that animals kept in category herbivorous. And if the animal do not eat the any parts of the plant, directly dependent on the flesh of the other animals, called the carnivorous एनिमल्स, इसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एंड दोज विच ईट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज वेल एज द फ्लैश कॉल्ड द ओमनीओरस, उनको हम बोलते हैं ओमनीओरस। नाउ सी द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज द ओमनीओरस। अब यहाँ पे जो आपको पैरट दिख रहा है वो पैरट क्या है, हर्बीवोरस। यहाँ पे जो आपको जो लिजर्ड दिखाई दे रहा है वो क्या है, इंसेक्टिवोरस है। तो वो इंसेक्ट को क्या करता है, किल करता है, तो वो क्या है, कार्निवोरस है। और जो ये वल्चर है उसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं, बिकॉज इट हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल की बॉडी होती है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, उसके डेड बॉडीज़ को खाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। According to the type of the food, animals can be classified as: first one herbivorous, second one is carnivorous, and third one is the omnivorous, and fourth one is the scavenger, and fifth one is the decomposers. Now see the first category, herbivorous. Herbivorous are the plant directly as their food। जो हर्बीवोरस होते हैं उनका फूड जो होता है डायरेक्टली प्लांट होता है एंड प्लांट्स का पार्ट्स होता है। एग्जांपल्स आर ग्रेजिंग एनिमल्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, काऊ, बफेलोज, गोट, ये जो है ग्रेजिंग चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस के एग्जांपल्स हैं। ग्रेविओरस, सीड ईटर, ग्रेविओरस, दिस इज द कैटेगरी अंडर द हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस की ही एक कैटेगरी है जिसका नाम क्या है, ग्रेनिवोरस, जो सीड्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, ये सीड्स को, लीफ नहीं खाते, सिर्फ उस प्लांट का जो है सीड्स खाते हैं, सीड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे आर कॉल्ड द सीड ईटर्स। फ्रूगीओरस, फ्रूगीओरस मीन्स दोज एनिमल्स विच डिपेंडेंट ऑन द फ्रूट, जो फ्रूट के ऊपर डिपेंड होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट के नहीं खाते हैं, ओनली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, फ्रूट के ऊपर। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड द कार्निवोरस। नेक्स्ट कैटेगरी है कार्निवोरस की। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड रहते, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर द फूड। जो कार्निवोरस होते हैं वो इनडायरेक्टली जो है प्लांट
इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट फॉर फूड, जो कार्निवोरस होते हैं आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर द फूड, मतलब डायरेक्टली वो प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं? बिकॉज जो कार्निवोरस होते हैं जो हर्बीवोरस को खाते, तो हर्बीवोरस किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? उस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इनडायरेक्टली जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड होते हैं या प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल्स आर एनिमल दैट फीड ऑन herbivores called predators and the animal that feed on the insect called insectivorous. नाउ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड द ओमनीओरस, उसको हम ओमनीओरस बोलते हैं। एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीओरस। ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड होते हैं कॉल्ड ओमनीओरस। एग्जाम्पल्स आर मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन बींग एट्सेट्रा। Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by very act of feeding themselves. They are called scavenger and decomposers. ऐसे भी कुछ organisms होते जो cleaning में help करते, they are called scavenger and decomposers. Scavengers obtain their food from the dead bodies of the animals, for example vulture, crow, hyena etc. अब स्कैंजर के क्या क्या एग्जाम्पल्स है? वल्चर गिद्ध जो होते हैं, क्रो जो कौवा होता है, हाइना, हाइना जो है वो क्या होता है? सियार उसको बोलते हैं हम लोग। फिफ्थ वन डिकम्पोजर्स। Decomposers are some microbes which obtain their food by the decomposing the dead bodies of organisms or other material. ये जो decomposers होते हैं वो दूसरे चीज़ों के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको क्या है, उनके डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी, ये दोनों डिकम्पोजर्स कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी, then I will end the meeting. Shahideen, Zainab, Chand, Sheikh. Is anybody having any doubts? Okay, now I am ending the meeting.